بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اہم خبر۔ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ تقریب میں چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سابق گورنر چودھری محمد سرور کی شرکت، رہنما نون لیگ ملک احمد مجیب الرحمان شامی، عزیز الرحمان چند، سہیل ورائے سلمان غنی شریک تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے عزیز وقاف سمیت اعلیٰ شخصیات بھی شریک ہوئے۔ ناظرین، ہم آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ تقریب میں چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سابق گورنر چودھری محمد سرور کی شرکت، رہنما نون لیگ ملک احمد مجیب الرحمان شامی، عزیز الرحمان چند، سہیل ورائے سلمان غنی شریک تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے عزیز وقاف سمیت اعلیٰ شخصیات بھی شریک ہوئے۔ سی او سی ٹی نیوز نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ کے مقرر سید محسن نقوی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار۔ سی او سی ٹی نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سی او سی ٹی نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ مقرر سید محسن نقوی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار۔ سی او سی ٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سی او سی ٹی نیوز نیٹ ورک نگران وزیر اعلیٰ مقرر سید محسن نقوی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار۔ سی او سی ٹی نیوز نیٹ ورک کا عہدہ چھوڑ دیا۔ صحافت کا معتبر نام سید محسن نقوی 1998 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ کرسٹن ماڈل اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جی سی یو سے گریجویشن، امریکہ سے صحافت کی ڈگری لی، سی این این میں بطور پروڈیوسر شمولیت اختیار کی، کم عمر ترین ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی صحافتی صنعت کا سب سے معتبر نام، جنہیں ان کی پیشہ ورانہ دیانت، ملک سے محبت، لگن اور ایمانداری کی مثال سمجھتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آنے والے انتخابات تک کے لیے 12 کروڑ عوام کا نگران وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ سید محسن رضا نقوی 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئے، آبا کا تعلق جنگ سے ہے۔ سید گھرانے کے اس چشم و چراغ نے اپنی ابتدائی تعلیم کرسنٹ ماڈل اسکول لاہور سے مکمل کی۔ کرسنٹ ماڈل اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد سید محسن نقوی نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور یہیں سے گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی ریاست میامی کی اوہائیو یونیورسٹی میں چلے گئے، جہاں انہوں نے صحافت میں نہ صرف ڈگری مکمل کی بلکہ دوران تعلیم ہی دنیا کے سب سے بڑے اور مقبول نیوز ادارے سی این این میں بطور پروڈیوسر شمولیت اختیار کی اور ترقی پا کر کم عمر ترین ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ Lot of concern about your security in Pakistan. There are a lot of threats reports coming out now in media. What are you thinking about that? And the second thing is, what kind of reception you're expecting in Pakistan tomorrow? I am aware of the threats for my security, and this has been discussed with General Pervez Musharraf. I am also writing him a letter, and I'm mentioning the hands, the hidden hands, who will be responsible. پاکستان نے سید محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق ایم پی اے سید علی حیدر گیلانی کا اس پر کیا رد عمل ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیر بخاری سے۔ جی زہیر بخاری، بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب کے نئے نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ سابق صوبائی وزیر اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گیلانی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ دونوں طرف سے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا، بالآخر محسن رضا نقوی کا انتخاب کر لے گئے، اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین میں درج طریقہ ہے اس کے تحت ہی ان کو کنسنسس بلڈ کر لینا چاہیے تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کو، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا۔ اتنی پولرائز ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے پولیٹیکل جماعتیں کہ ایک انٹرم وزیر اعلیٰ کے لیے بھی وہ کسی ایک نام کے اوپر متفقہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ پھر جو کمیٹی بنی تھی پارلیمانی کمیٹی، اس میں وہ نام ہو جانا چاہیے تھا، کوئی کسی ایک نام پہ اتفاق ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر آخرکار الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ گیا اور الیکشن کمیشن نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیسٹ نام لگا ہوگا، انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوگا۔ باقی جو پی ٹی آئی کی طرف سے نام تھے، میرے خیال سے ان کی ایلیجبلٹی وہ زیادہ کویسچنیبل تھی، اور جب اب میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چیلنج کریں گے اس کو۔ کس کو چیلنج کریں گے آپ؟
یہ تو ایک آئینی طریقہ کار سے ایک چیف منسٹر انٹرم بنا ہے، آپ کس طرح اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں؟ یا کوئی اس کی ایلیجبلٹی کا ایشو ہے، کیا ایشو ہے ان کو؟ بس وہ صرف اپنا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں رہیں، اور حکومت بھی خود توڑیں بھی صحیح، اور پھر بھی ہماری حکومت رہے، اور ہم پاور میں رہیں لیکن ہمارا جواب دینا ہو۔ عمران خان کا یہی مسئلہ ہے نا، کہ ان کو طاقت چاہیے لیکن ان کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے، ان کو طاقت چاہیے، ان کو پاور، وزیر اعظم کی کرسی چاہیے، لیکن کوئی سوال نہ کرے ان سے، ان کو یہ چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ان کو نہیں مل سکتا۔ عوام باشعور ہے، عوام نے فیصلہ کیا کہ 5 سال کے لیے ایک حکومت کو انہوں نے ووٹ دیا، آپ نے اپنی حکومت توڑ دی۔ یہ اس کی منطق آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، جس میں دو آپ کی ایک الیکشن 4 مہینے بعد ہو جانا تھا، ابھی بھی اسی ٹائم پہ ہی ہوگا نا، آئینی ریکوائرمنٹ ہے 30 دن کے اندر الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، اور جب اسمبلیاں توڑی ہیں، اور تو یہ جو فریش مینڈیٹ آئے گا 5 سال کا، عوام نے تو ان کو 5 سال کے لیے ووٹ دیے تھے، انہوں نے اپنی اسمبلی خود توڑ کے عوام کا نقصان کیا، پیسے کا ضیاع کیا۔ اب الیکشن کے اوپر تو خرچ ہوتا ہے نا، تو عمران خان صاحب یہ تو نہیں سمجھتے کہ کتنا خرچہ ہونا ہے الیکشن کے اوپر، اب الیکشن کے اوپر جا کے خرچہ بھی ہوگا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ٹرم پوری ہونے دیتے، انہوں نے ٹرم نہیں پوری ہونے دی، اب یہ عوام کے پاس جائیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا ان کی ڈیلیوری تھی 4 سال میں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے بزدار صاحب کی حکومت تھی، کیا کام ہوا ہے ان میں؟ اس کے بعد پرویز الہی صاحب آئے، وہ تو صرف اپنے ڈویژن کے وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد جو باقی انہوں نے جو پیسے کا ریل پیل کیا ہے اس صوبے میں، وہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنا۔ تو یہ تو ان کا جواب دینا پڑے گا پرویز الہی کو اور عمران خان کی جو جماعت ہے اس کو۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کے نام کے اوپر جو اتنی بحث کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ اس میں کیا ایشو، اس کے کریڈینشیلز میں کیا غلط بات ہے؟ ایک تو ان کی، بلکہ میں تو ایز اے ساؤتھ سدرنر میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے آدمی کو، جس نے کم از کم ہمارے خطے کو شناخت تو دی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف تو شناخت بھی نہیں دے سکی، جو وعدہ کرتی تھی عوام سے کہ ہم آپ کو صوبہ بنائیں گے۔ کم از کم محسن نقوی صاحب کا کوئی چینل بھی ہے جو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے، ان کی آواز بن رہا ہے، جو ہمارے خطے کا کم از کم ہمارے ساتھ مخلص ہے، مجھے تو خوشی بھی ہوگی، چلو یار وہ بن گیا ہے جس نے ہمارے خطے کو ایک شناخت دی، اس کی نیت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایلیجبل آدمی ہے، گڈ چوائس۔ اچھا گلن صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آنے والے جو ہے اب الیکشنز کی بھی جو ہے وہ تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، الیکشن کے لیے کس طرح کی تیاریوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سب سے پہلی ذمہ واری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ واضح طور پہ یہ ڈیٹ کا اعلان کرے کسی ہجان میں سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، پولیٹیشنز کو، اور جو ورکرز ہیں۔ آلریڈی ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے عمران خان نے، تو یہ اس ہجان کو دور کرنا ہے ہم نے۔ تو الیکشن کمیشن کو ایک ڈیٹ واضح طور پہ دینی چاہیے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے، جو کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہونا ہے، تو وہ 90 ڈیز کے اندر وہ 60 دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا فیصلہ جلد لے جس میں عوام کی آگے صورتحال بدلے، کیونکہ عوام تنگ آ گئی ہے پچھلے 4 سالوں میں تحریک انصاف کی یہ حکومت اور یہ سیاست کا طرز عمل دیکھ کے کہ حکومتیں گر رہی ہیں، بن رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، حکومت ٹوٹ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے اور ٹائم فریم عوام کو دے کہ اس ٹائم فریم کے اندر الیکشن ہوگا صوبے کا، اور بے شک مہینے کے اندر کرا لیں، 2 مہینے میں کرا لیں، 3 مہینے کا ایک ودن 90 ڈیز ہونا ہے۔ تو ودن 90 ڈیز کا مطلب ہے کہ آپ 60 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 45 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مڈ آف مارچ پروبیبلی ایک اچھی ڈیٹ ہے الیکشنز کی۔ تو اگر وہ اناؤنسمنٹ جس طرح جب بھی ہوتی ہے تو ہماری پہلے سے تیاریاں مکمل ہیں، ہمارا بورڈ بن گیا ہے الیکشن ٹکٹس کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے اچھے کینڈیڈیٹس پٹ کریں گے ساؤتھ پنجاب میں، ایک وننگ کمبینیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اس آنے والے الیکشنز میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بھاری اکثریت سے یہ جنوبی پنجاب میں سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ آخر میں خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ خان صاحب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ خان صاحب آپ اس ملک کا اور نقصان نہ کریں اپنی ذات کی خاطر، کہ آپ کرسی پہ نہیں بیٹھے تو آپ نے ملک کو ایک انسٹیبلٹی کی بھیڑ چڑھا دیا صرف اپنی ذات کی خاطر۔ تو یہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اب آپ ایک میچور سیاستدان بن جائیں، ایک میچور جماعت ہیں، اب ایک سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تب آپ کو میچور ہو جانا چاہیے، اب آپ کو بڑے ہو جانا چاہیے، اور آپ اپنی ذات سے بڑھ کے یا سیاست سے بڑھ کے بھی ملک کے لیے کچھ سوچیں۔
साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आने वाला जो अब महीने हैं वो इलेक्शन के महीने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के लिए जो है भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। जी, बहुत शुक्रिया सईद ज़ोहैर बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकज़ रहनुमा MNA अली मूसा गिलानी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं कि जी ये ब्यूरोक्रेट है तो ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है इलेक्शन कराना। देखिए, वो एक मोहसिन नकवी साहब का मीडिया के साथ बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक़ है, वो आम आदमी के मसाइल को जानते हैं। निगरान वज़ीर आला जो है 90 दिन एक बहुत तवील अरसा होता है, और उसके अंदर 90 दिन के लिए तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब भी नहीं रहे होंगे। तो उसके लिए हमें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो कि आवाम के मसाइल को भी जाने, और इलेक्शनिंग की उनका तजर्बा है मीडिया की वजह से, तो वो मसाइल जानते हैं कि आवाम को, पब्लिक नुमाइंदों को पोलिंग्स पर किस किस्म के मसाइल दरपेश आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन एक मुनसिफाना शफाफ अंदाज में इन जो भी 5 नाम थे, इन 5 नामों में से मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ही एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते थे जो कि पंजाब के अंदर। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी को आइन सूबे की बेहतरीन और शफाफ इंतखाबात के लिए एक दुरुस्त फैसला करार दे दिया है। कानूनी माहिरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं जानता हूँ एक नहायत ही प्रोफेशनल आदमी है, और उनकी नेकनामी के मतलब भी मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी शोहरत के मालिक हैं, और मेरे ख्याल में एक न्यूट्रल वज़ीर आला के तौर पर इस सूबे को भी बहुत अच्छा चलाएंगे और इलेक्शन को भी बहुत अच्छा कंडक्ट करवाएंगे। खुशी की बात है कि मोहसिन नकवी जो है, मैं मौजूदा समझता हूँ किसी न किसी हवाले से कोई न कोई अटैचमेंट है बाकी दोस्तों की, लेकिन ये है कि नकवी साहब बुनियादी तौर पे, मुझे ज़ाहिरी तौर पे तो एक उनका न्यूट्रल पोस्चर नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक नीट एंड क्लीन शख्सियत हैं, माजी उनका बेदाग है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन पे पूरा एतमाद रखती हैं। पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली और गैर जानदारी के हवाले से भी वो बहुत अच्छा प्रोविंस को चलाएंगे, और मैं उनके लिए दुआगो भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इतने मेहनती आदमी हैं कि उन्होंने अपना जैसे इंस्टीट्यूशनल लेवल बिल्डअप किया है, वो पंजाब के लिए भी एक मेहनती और कारआमद इंसान साबित होंगे इंशाअल्लाह। मोहसिन नकवी साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो इंतहाई जिम्मेदार और इंतहाई मुखलिस और कर्टियस इंसान है। मेरे ख्याल में वो बड़ी बेस्ट चॉइस है पूरे सूबे को एक गैर जानवर तरीके चलाने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर जनूबी पंजाब के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए इनसे जानते हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब बने हैं, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका सहाफ़त और समाजी खिदमत के हवाले से बड़ा नाम है। उनके मुतल्लिक बड़ी अच्छी बातें और ख़बरें सुनने को मिली हैं। उम्मीद है कि वो पंजाब के अवाम के लिए अच्छा काम करेंगे और उन्हें पंजाब के अवाम को सहूलियात देंगे। मैं मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। जितना भी इनका टेन्योर है उसमें महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अवाम बहुत बुरी तरह पिसे हुए हैं, और अवाम को अगर अपने दौर में वो ये कुछ रिलीफ दे गए तो इनका नाम हमेशा याद रहेगा। हम मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो शफाफ और साफ इलेक्शन करवाएंगे। हम निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मुस्तफाना और सही इंतख़ाबात करवाएंगे वो, और मज़ीद इंतज़ामिया को साथ लेकर चलेंगे। कोटचुठा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी पॉइंट्स पर आटे की ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। सस्ते आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वारिज का सामना। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद शहरी खाली हाल लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में।
आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। कोटछुट्टा में चोटी रोड और झोंक रोड पर 2 सेल पॉइंट्स कायम किए गए, जहां पर फ्लोर मिल मालकान और अमले की मिली भगत से मुबैना आटे की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि गरीब शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद सर्दी में सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। 6 बजे दे आवे तो चिल्ला काट के भला इधर खड़े कमरे बैठा कमरे उठी था मतलब बुक किने ढेढे दर्द सफारतें को आटा मिलता पे 2 थैले 4 थैले चंदे ते वेंदे पे अगो वेंदू जो कुछ आठा आगे सा कुछ दित्तस दिखा संगे से चोते भर समझ में नहीं आ रहा है। जो इनके सिफारती आ रहे हैं उनको मिलता जा रहा है, देते जा रहे हैं, कोई लाइन नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऊपर से पैसे देते हैं उसको उठा के दे देते हैं ये लोग। बस बाकी जो बुजुर्गान हैं देखे जवान है, कोई मरीज भी है इनमें, आखिर कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 8 से, कोई 10 से, वो आटा लेने के लिए आया हुआ है। किसी के घर में आया 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, खाने का आटा मिलेगा तो वो जाके खाएंगे ना। सरकारी पॉइंट पर आटा ना मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। शहरी हलकों ने हुकूमत से आवाम के लिए आटे का हसूल आसान बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। महंगाई ने किसी को भी ना बख्शा। लंडा बाजार की रौनकें भी मान पड़ गईं। मुल्तान में दुकानदार गाहकों का इंतजार करने लगे, जबकि शहरियों के पास लंडे के कपड़े खरीदने की भी ताकत नहीं। और नवाज की रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई ने लंडा बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अवाम गर्म कपड़े खरीदने से कासिर। शहरियों का कहना था कि आटा, दाल, घी के मसाइल से नहीं निकल रहे, अब लंडे को भी आग लग गई है। कहने वाले थे कि हम 3 महीने में यूं कर देंगे, उन्होंने गरीब की गला ही दबा दिया। उन्होंने गरीब आदमी से पूछो वो लंडा लेगा, ये घर का राशन लेगा। महंगाई से दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई दिए। आसमान से बातें करती कीमतों के बाइस कारोबार तबाह होकर रह गए। टैक्स की भरमार से लंडे का माल भी महंगा हो गया। 1000 रुपए की भी बिक रही है, वो भी गाहक नहीं ले रहा, और 1500 की चीज आ रही है। बहुत ज्यादा महंगाई होगी, अब वो रोजगार बहुत कम हो गया है और आमदन कम है, महंगाई ज्यादा, लिहाजा हमारा गुजारा नहीं होता। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में अशक और अनाज की कीमतों में इजाफा। दालों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। दाल चना 7,500 रुपये से बढ़कर 8,500 रुपये फी मन हो गए हैं। मजीद जानते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी में। गला मंडी में अशक खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। दालों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आया। बात करें दाल चना की कीमत 7500 रुपये से बढ़कर जो है वो 8500 रुपये फी मन होगी। जबकि इसके साथ साथ बात करें दाल मूंग की कीमत 8000 रुपये से बढ़कर जो है वो 10,500 रुपये फी मन होगी। जबकि बात करें दाल मिस्र की कीमत 1500 रुपये इजाफे के बाद 8500 रुपये फी 40 किलोग्राम जो है वो होलसेल मार्केट में फरोख्त की जा रही है। अगर इसी के साथ साथ बात करें दाल माश की कीमत 11,500 से बढ़कर जो है वो 13,000 रुपये फी मन हो गई है। दालों की कीमत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। दालों की कीमत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता है, दाल भी जो है वो गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। ये पहले ऐसे होता था कि दालों के कोई रेट बढ़ते थे तो 100 रुपये या 200 रुपये मन के हिसाब से इजाफा होता था, लेकिन अब तो 1000 रुपये 500 रुपये ऐसी मामूली सी बात हो गई है कि 1000 रुपये 500 रुपये मन के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। समझ से बाहर है, लोग भी परेशान है। ग्राहक आता है, रेट पूछ के चला जाता है कि महंगे होने की वजह से। जो आइटम ग्राहक हमसे 8000 रुपये मन अभी हाजिर खड़े होकर लेके जाता है, वो अगले दिन आता है तो 8400 8500 रुपये रेट बना हुआ होता है। इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है दाल की बढ़ती कीमतों के बायस जो है वो दाल भी अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि दालों की कीमतों में कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे आम खबर। तोनसा शरीफ असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा जमील हैदर शाह का तबादला। जमील हैदर शाह को रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। जिला तोनसा शरीफ में ताहाल किसी को तैनात नहीं किया गया। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर दे रहे हैं। तोनसा शरीफ असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा जमील हैदर शाह का तबादला कर दिया गया है। जमील हैदर शाह को रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। जिला तोनसा शरीफ में ताहाल किसी को तैनात नहीं किया गया। और अब रुक करते हैं शहर मुल्तान का कि हजूरी बाग रोड पर ग्राउंड फेलियर से शहरियों को
जानी और माली नुकसान का खतरा, मुतासरा जगह को रुकावटें लगाकर सील कर दिया गया। वासा की जानिब से नकासियाब का काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियल इकबाल से। जी दानियल इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के हुजूरी बाग रोड पर, जहां आज शाम को क्राउन फेलियर के नतीजे में जो गड़ा पड़ गया है, उसके नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो आमदोरफ्त की जो ट्रैफिक है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आस पास की जो दुकानें हैं उनके जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। शहरी जो है उन शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाले। तो इस हवाले से जब हम यहाँ पहुँचे तो वासा मुलाजमीन यहाँ पर मौके पर मौजूद थे जो कि नकासी आब करने में मसरूफ़ हैं। उनका ये कहना था कि जो सीवरेज की लाइन है वो फटने से क्राउन फेलियर यहाँ पर हुआ है, जिसके बायस जो ज़मीन है वो बैठ चुकी है और गड़ा पड़ चुका है। इस हवाले से नकासी आब के हवाले से काम जारी है और हमारे साथ वासा मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो अब तक क्या काम कर चुके हैं। जी बताइएगा, गड़ा पड़ गया है, क्राउन फेलियर है, क्या कहना चाहेंगे? वासा काम की तरफ से मरम्मत जारी है, इंतजाम जारी हैं, मोटर वगैरह लगा दी है, जैसे पानी वगैरह क्रॉस करके इसको काम जारी कर देंगे जल्द अज जल्द। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि निकासी आपके लिए मोटर का एहतमाम भी किया जा चुका है और अब पानी निकाला जा रहा है और जल्द अज जल्द जो है क्राउन फेलियर को कल सुबह तक जो है पुर कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दानियल इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। अल खिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर हुसैन हैदर शाह, मोहम्मद इकबाल वट्टू, मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान जोया ने 600 से ज़ायद काम की। शहरियों ने ऐसे इक़दाम पर अल खिदमत फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की रिपोर्ट में देखते हैं। खिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद में रेस्क्यू ऑफिस में गरीब और नादार मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। MSTHQ अस्पताल सैयद हसनैन शाह, बहावनगर से चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वट्टू, माहिर अमराज जिगर और मैदा डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और नौजवान डॉक्टर ज़ीशान जोया ने 600 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया और अदवायात दी। मुतअद्दिद मरीजों के फ्री टेस्ट भी किए गए। शहरियों का कहना था कि ऐसे कैंप का इनेकाद होना चाहिए। माशाल्लाह जी, आज अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत से गरीब लोगों को यहाँ पे मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्ट और मुफ्त उनके टेस्ट वगैरह किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन में आके हमें बहुत खुशी हुई है। लोगों को फ्री मेडिसिन और फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ऐसे कैंप्स होने चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर गुलजार अहमद और तहसील सदर मियाँ इब्रार प्राचा का कहना था कि मिंचनाबाद में बहुत जल्द फ्री क्लिनिकल लेबॉर्ट्री और डिस्पेंसरी का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। गरीब और नादार मरीजों को फ्री सहूलियात दी जाएंगी। तकरीबन 800 से ज़ायद पेशेंट को डॉक्टर्स हजरात ने चेक किया और उनको फ्री टेस्ट और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की है। लेबॉर्ट्री का भी इधर इफ्तिताह करेंगे और एक डिस्पेंसरी भी बनाएंगे। मुफ्त अद्वियात, मुफ्त चेकअप और मुफ्त टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। एक बड़ी कसीर तादाद जो है वो यहाँ पहुँची है और मेरे ख्याल में कोई 800 के करीब जो मरीज़ हैं वो हमने रजिस्टर्ड भी किए हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर अल खिदमत फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। अगर आप बेरोजगार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक मुनफरद सा नाम तलाश करें और काम शुरू कर दें। आपकी किस्मत का सितारा चमक सकता है। कोटअद्दू के शहरी मोहम्मद वकास ने भी एक अनोखा काम किया है। रनमुरी टी स्टॉल और सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर बनाकर कारोबार खूब चमकाया। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोटअद्दू के मोहम्मद वकास ने रनमुरी टी स्टॉल और सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर बना लिया। वकास का कहना था कि वो घर के काम काज करता था। बेगम ने मशवरा दिया कोई मेरे नाम से कारोबार कर लो, तो उसने बेगम की मोहब्बत में अपने टी स्टॉल का नाम रनमुरीद रख दिया। वकास का कहना था कि दूसरे शहरों से भी लोग सिर्फ इसी नाम की वजह से चाय पीने आते हैं। रनमुरीद नाम रखने से कारोबार चमक उठा है। चरसी चाय, कलंदरी चाय और गुड़ वाली चाय बनाई जाती है। काफी टी स्टॉल है, लेकिन जो उन्होंने नाम रखा है रनमुरीद टी स्टॉल, तो ये एक बड़ा मुनफरिद नाम है। तो हम लोग आज इधर आए हैं तो बहरहाल बड़ी इनकी ज़बरदस्त इनकी एक सर्विस है। इनके चाय का मियार भी बड़ा बेहतरीन है। हर बंदा रनमुरीद आज के दौर के अंदर ही, तो अगर ये जब होटल का नाम भी रनमुरीद रखा है तो नाम भी खींच अपनी तरफ और मियार भी खींच रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मियार में भी और इनके नाम में भी, इनके हर चीज़ में इनकी बरकत दे।
रन मुरी टी स्टॉल पर लोग आते हैं, तंज भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन चाय पी कर जाते हैं। वकास का कहना था कि रन मुरीद सब होते हैं लेकिन मानते नहीं। वो मानता भी है और सामने भी आ गया। भाईजान होते सभी रन मुरीद हैं, बस हम ये है कि शरेआम आ गए हैं, बाकी सारे छुपे हुए हैं। बताता कोई नहीं कि रन मुरीद हूँ मैं, लेकिन इस नाम की वजह से मेरे काम में भी इजाफा हुआ है। लोग कुछ तनकीद भी करते हैं, कुछ सराहते भी हैं इस काम को। वैसे तो सभी रन मुरीद हैं, लेकिन मोहम्मद वकास की जुर्रत को सलाम जो खुलकर सामने आ गया। कैमरामैन लुकमान मुमताज के हमरा शफकत मलाना, कोटा 2। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।